let's start the revision of our chapter number 5. The name of our chapter number 5 is Natural Resources. Before starting the revision, you all have to note down all these important points in your revision और homework copy. आप ये points या तो अपनी revision copy में लिखेंगे या अपनी homework copy में लिखेंगे. And you all have to learn all these important points. Okay, so that you can take help with these points during your examination in your preparation. Okay, so now let's start. Point number 1. Natural resources are the resources given to us by nature. Students, if you have a question, what are natural resources? So you have to write, natural resources are the resources given to us by nature. Natural resources ऐसे resources हुए जो हमें nature के द्वारा मिलते हैं. Okay, next. Some examples of natural resources are air, water, land, animals, sunlight, plants, etc. कुछ natural resources के उदाहरण हैं air, water, land, animals, sunlight, plants and many more. Okay. Now next is natural resources are called the wealth of a nation. Natural resources किसी भी nation या राष्ट्र की wealth के रूप में जाने जाते हैं. जिस भी कंट्री में जितने रिच नेचुरल रिसोर्सेज होंगे वो कंट्री उतनी ही प्रॉस्परस होगी. ओके, नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स. स्टूडेंट्स, इफ यू हैव अ क्वेश्चन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर देयर, सो यू हैव टू राइट रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं. द फर्स्ट वन इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड द सेकेंड वन इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. Okay, now next point is point number 7. Resources that can be used again and again are called renewable natural resources. Students, ऐसे resources जिन्हें हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं या जिनका यूज़ करने से वो ख़त्म नहीं होते हैं उन्हें हम renewable natural resources कहते हैं. So it is the definition of renewable natural resources. Okay, next is what are non-renewable resources. So resources that do not grow or that cannot be replaced easily are called non-renewable resources. ऐसे resources जो easily grow नहीं करते हैं या जिन्हें हम easily replace नहीं कर सकते हैं उन्हें हम non-renewable resources कहते हैं. Oil, copper, diamond, minerals are some examples of non-renewable resources. Okay, oil, copper, diamond and minerals ये सारे कुछ non-renewable resources के examples हैं. Students, renewable resources ऐसे होते हैं जिनका हम continue use करते रहते हैं लेकिन वो ख़त्म नहीं होते या easily replace होते रहते हैं. But नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनका अगर हम कंटिन्यू यूज़ करते रहते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा या तो ये रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे या ये इनको बनने में बहुत ही ज़्यादा टाइम का समय लगता है तो हमें बहुत ही लंबा समय वेट करना पड़ सकता है. सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर देयर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. And here are the definitions of renewable and non-renewable resources. So you all have to learn all these two definitions very clearly. Okay, and you all have to note down all these points in your copy and learn it. Now next point is what is fossil fuel. Students, fossil fuels are also non-renewable resources. ये जो fossil fuel होते हैं ये भी non-renewable resources होते हैं. फॉसिल फ्यूल में हम पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फ्यूल्स दैट आर फॉर्म्ड बाय द रिमेन्स ऑफ डेड एंड डिकेड एनिमल्स एंड प्लांट्स आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स. स्टूडेंट्स, ऐसे फ्यूल्स जो डेड एंड डिकेड एनिमल एंड प्लांट्स से बनते हैं इन्हें हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज most of our day-to-day activities are fulfilled by natural resources. Students, हमारी रोज की day-to-day activities में ये natural resources हमारी बहुत help करते हैं. Some natural resources can be used directly while others are processed. कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं और कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं
जिनके प्रोसेस्ड के बाद हम उन्हें यूज़ करते हैं या ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज पेट्रोलियम इज टेकन आउट फ्रॉम द अर्थ इन अ क्रूड फॉर्म। पेट्रोलियम अर्थ से क्रूड फॉर्म में निकाला जाता है। ओके, इसके बाद इसे प्रोसेस्ड किया जाता है, देन हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सोलर एनर्जी। स्टूडेंट्स, व्हाट इज सोलर एनर्जी? एनर्जी फ्रॉम द सन इज़ नोन एज सोलर एनर्जी। सन से हमें जो एनर्जी मिलती है उसे हम सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा के नाम से जानते हैं। सोलर एनर्जी इज़ नाउ डिस्क्राइब्ड एज द रिसोर्स ऑफ द फ्यूचर। स्टूडेंट्स, आज के समय में सोलर एनर्जी क्या है? एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। सो आज के टाइम पे सोलर एनर्जी को एज अ फ्यूचर रिसोर्स देखा जा रहा है। ओके, नेक्स्ट इज विंड एनर्जी इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स, विंड एनर्जी का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है। नेक्स्ट, ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर द बिगेस्ट थ्रेट टू द नेचुरल रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स, नाउअडेज आज के समय में ह्यूमंस ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिससे धीरे धीरे ये नेचुरल रिसोर्सेज या तो ख़राब होते जा रहे हैं या ख़त्म होते जा रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ, सो वी हैव टू प्रोटेक्ट इट एंड कंजर्व इट। ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है ये हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। सो हम सभी को नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना चाहिए और कंजर्व करना चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कुछ स्टेप्स उठा सकते हैं, जैसे कि वी हैव टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़। हम जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतने ही ज़्यादा हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग वेस्टेज ऑफ पेपर। हमें पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितना यूज़ हो केवल उतने ही पेपर का यूज़ करें, उसके बाद पेपर को वेस्ट ना करें। नेक्स्ट, वी हैव टू इनकरेज द पीपल टू सेव आवर नेचुरल रिसोर्सेज। इसके अलावा हम अपने आसपास में भी लोगों को इनकरेज कर सकते हैं, जिससे सभी लोग मिलकर नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करें, कंजर्व करें और नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय होने से बचा सके। ओके, सो डैट हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी इन सारे नेचुरल रिसोर्सेज को एंजॉय कर सके। ओके स्टूडेंट्स, विद दिस द रिविजन ऑफ अवर दिस चैप्टर हैज़ एंड। You all have to learn all the important key terms, points to remember of this chapter, and also you have to learn all the MCQs, short question answer, long question answers. What are the exercises included in this chapter? You have to learn that also. Okay.